ایک اور بتاتی ہوں. میری امی ہم لوگ مجلس بہت محرموں میں، میری ماں جیسی میں کہتی ہوں نا مومنہ عورت کوئی نہیں میں نے دیکھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو ہمارے یہاں مجلس ہمارا ٹائم ہوتا تھا شام میں، عورتیں پورے محلے میں ایریے میں ہوتی تھی، سب ہوتے ہوئے آتے تھے. تو ساری عورتیں کہتی تھیں رضوی صاحب کے یہاں جو بیگم رضوی کے یہاں جو رش ہوتا ہے نا وہ کسی کے یہاں نہیں ہوتا ہے. یہ کہتی رہیں 3 محرم یا 4 محرم کو پورے امام بارگاہ میں آگ لگ گئی. اللہ اکبر. پورا کچھ بھی نہیں تھا، پورا ڈرائنگ روم میرے اتنا بڑا تھا امی کا، تو وہ امام بارگاہ بنا دیتی تھی چاند رات کو پورا. تیسرا یہ 4 محرم تھا، اچانک جب جیسے مجلس کا ٹائم ہونے لگا تو وہ ڈرائنگ روم کی دروازوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو گئے. وہ دیکھا تو پورا آگ، وہ آئی فائر بریگیڈ آیا، وہ آج تک نہیں پتہ لگ سکا کہ کیسے آگ لگی. اچھا آپ بھی کچھ بتائیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے میں نے نیا گھر جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تو جیسے سعدیہ بتا رہی ہے نا کہ آپ بتا رہی ہیں شیشہ، تو ہمارے میں کہتے ہیں کہ شیشہ ٹوٹنا بلا یہی کہتے ہیں چلو شیشہ ٹوٹ گیا چلو بلا ٹل، اور یقین کریں بلا ٹلتی. اچھا کچھ میں اپنی زندگی کے تجربات سے، کیونکہ میرے آپ کہہ رہی نا بہت ساری تجربات آپ سے بہت. مجھے پہلے بتا دیں بریک میں کتنا ٹائم ہے کیونکہ پھر میں کٹ نہیں کروں گی ان کو. اچھا ہاں بھی ٹائم. جی کچھ بھی مطلب کہ نا ہم کہتے کہ اگر شیشہ ٹوٹا بلا ٹلی یا اگر گلاس ٹوٹا تو، لیکن میری اپنی زندگی کے بہت سارے ایسے ہوئے کہ میری چیزیں تکمیل پہ نہیں پہنچی. گھر لے رہے ہیں، سب کو دکھا دیا ارے میں یہ لوں گی کیونکہ مجھے گارڈن پسند ہے، نہیں کبھی بھی پورا نہیں ہوا. وہ آج تک جو مطلب کہ میری خواہش ہے پوری نہیں ہوئی. وجہ یہ کہ ٹو لگ جاتی ہے. اس کے بعد میں نے کیا کیا، ابھی ہر چیز میں کسی کو نہیں بتاتی. کچھ چیزیں میں نے اپنے گھر میں کی جس سے نیگیٹیوٹی بہت کم ہوئی. سب کر سکتے. یہ جو پیلی سرسوں ہوتی ہے نا، جی پیلی سرسوں ½ ٹی اسپون لے کے آپ اپنے گھر میں پھیلا دیں، کونوں میں ڈال دیں، اور پھر صبح جب جھاڑو نکالیں تو پھر اس کے ساتھ وہ نکل جائے. نیگیٹیوٹی کو یہ نمک گھر سے کم کرتی ہے. تو کیا چاروں طرف ایسے ہی ڈال دیں، ایسے کہیں کونوں میں پیلی سرسوں نمک ڈال. دوسرا نمک جو ہے وہ آپ جیسے گھر کے انٹرنس پہ جیسے ہم رکھتے ہیں نا، رگ رکھتے ہیں جس پہ قدم رکھ کے لوگ اندر آتے ہیں، فٹ اسٹیپ رکھتے ہیں، میٹ، اس کے نیچے نمک ضرور ڈالیں. آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی بھی تقریب ہو تو آپ نمک ضرور ڈالیں. وہ بھی جو بھی فٹ اسٹیپ اس پہ رکھ کے آپ کے گھر آئے گا، کھلا ہوا نمک. کھلا ہوا نمک گھر کا کون کس انرجی کے ساتھ آپ کے گھر میں کس انرجی کے ساتھ آ رہا ہے. کیونکہ نمک سب سے پہلے انرجی کھینچتا ہے. اور اس کے لیے ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کا جسم بھاری ہو رہا ہے یا آپ کو نظر لگی ہے، فوراً سے پہلے نمک سے نہا لیں. اور لیمبو سے لیا نمک، آپ 1 چمچ نمک ڈال دیں اس کے اندر، آخری اس میں لے لیں اور وہ پانی کا شاور. لیمن بھی سمندر کا پانی. آپ یہ بات تو نہیں کہ مقصد ہاں سمندر کے پانی کے اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کو نظر لگی ہوئی کہ آپ کو اگر جادو ٹونا ہو تو آپ جا کے سمندر ایک تو کراس کر یا پانی میں ڈپ کر چاروں سمندر کے پانی میں، سمندر کے پانی میں نمک ہوتا ہے جو آپ کی ساری نیگیٹیوٹی کو کھینچتا ہے. آپ کی انرجی، نیگیٹو انرجی کو آبزرو کرتا ہے. اوکے. اور آپ دیکھیں نمک جو رکھتے ہیں نا، جو ہم نمک وغیرہ رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہو اور آپ بیٹھے ہو نا تو نمک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی نیگیٹیوٹی کو وہ چلیں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں مزہ آئے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں آج نظر کے حوالے سے. پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے. اکثر اپنے بچے کو جی بھر کے دیکھ رہے ہو تو میرے میاں مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ایسے مت دیکھو اس کو، کیونکہ باقی جب اس کو دیکھ رہے ہوتے تو آپ ایک اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ میں تیرا اتنا شکر ہے کہ تو نے صاحب اولاد بنایا اور پھر تو نے اتنی پیاری اولاد دی اور دل میں اتنی پیاری محبت ڈال دی. تو کہتے ہیں کہیں کہیں آپ کو جی بھر کے اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. بچوں کو تھوڑے کھانے کے حوالے سے بات بھی کر رہے تھے اور بھی کچھ واقعات میں مزید ان سے بات بھی کروں گی. ہمارے ساتھ کیس بھی یہاں پر موجود ہیں تو ذرا ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں. سنا ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سنا.
सना, कैसी आप? ठीक हैं सना? नज़र ने आपको कैसे इफेक्ट किया? माइक 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 जी। वालेकुम सलाम। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें 2 भाई। हम में माशाल्लाह बहुत प्यार था, इतनी मोहब्बत कि बाहर पिकनिक पे जाना, घूमना फिरना, हम लोग माशाल्लाह बिल्कुल वेल सेटल लोग थे। इतनी मोहब्बत कि बस आपको बता नहीं सकती कि मैं बहुत मिस करती हूँ अपने बहन भाइयों को, बहुत याद करती हूँ। हमारे जो ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल की वजह से ये सारी परेशानी मेरे घर में आई। क्योंकि बच्चे ये करते थे कि जो भी जैसे पिकनिक पे जा रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं, तो उठा के स्टेटस लगा देते थे। और वो स्टेटस देख देख के लोगों के कॉल्स मेरे पास आती थी, मेरी दोस्तों की, हमारे दूसरे ऐसे रिश्तेदार जो नहीं शामिल होते थे हम बहन भाइयों की गैदरिंग में। तो वो अक्सर मुझे ये कहते थे कि तुम तो बहुत घूमती फिरती हो माशाल्लाह, तुम तो जा रही हो, तुम तो आए दिन भाइयों में घुसी रहती हो, जब देखो तुम्हारे भाई तुम्हारे यहाँ होते हैं, तुम्हारे यहाँ दावतें चल रही हैं, तुम्हारे यहाँ बर्थडे हो रही है, ये वो। तो मैं यही सोचती थी, मैंने बोला चलो आप लोग देखते हैं, चलें अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा कि देखते ही देखते हम भाई बहनों में ऐसी नातफाकी हुई, आप यकीन करें इस तरह कि आज हम भाई बहन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। इतनी नातफाकी हो गई हमें कि मेरे भाई, हम चाहें भी कि हम कोशिश भी करें कि बहन, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि मेरा ना खाने में दिल लगता है। आप यकीन करें मेरे इतने अच्छे हालात थे कि आज मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। माली हालात से भी, मेरे भाइयों के भी कारोबार बिजनेस सब ठप हो गए, सब कुछ। तो मैं ये मानती हूँ मैं कि ये आप लोगों का मतलब आगे आप लोगों को माली नुकसान भी, आप सब लोग बहन भाइयों को, चारों बहन भाई को हुआ एक तरह से, ठीक है। और आपस में जो आप लोगों की दूरियां आई, तो उसमें क्या कोई लड़ाई हुई या फिर आप लोगों के पार्टनर्स की वजह से, किन बातों की वजह से एकदम से दूरी आ गई? ये ना कि हमारे जैसे बच्चे थे, उनमें रिश्ते होने जा रहे थे, वो रिश्तों में दूरी आ गई। कोई ना कोई बात आ जाती है, भाभी कुछ नाराज़ हो जाती है किस बात पे, ये नहीं ऐसा नहीं, मैं यहाँ नहीं करूँगी, अब इनके वैसे पहले जैसे हालात नहीं, अब मैं नहीं कर रही। कोई ना कोई बातें चली आ रही हैं। भाई अब सीधे मुँह बात नहीं करते। मैं चाहती भी हूँ कि भाई बात करें, मम्मी पापा नहीं, अब हम बहन भाई हैं जो हम आपस में मिल के रह सकते हैं। लेकिन अब ये कि भाई बात ही नहीं करना चाहते कुछ। अगर मैं कोशिश भी करूँ किसी की तरह, अच्छा वो लोग स्टेटस दी के तारीफ़ करा करते थे कि यार तुम तो ये कर रही हो, तुम तो आए दिन पिकनिक पे जा रही हो, तुम लोग तो इस्लामाबाद जा रहे हो घूमने एक साथ, ये कर रहे हो। आज वो लोग ये नहीं चाहते, ये नहीं सोचते कि चलो जिनके हम जो बहन भाई इतना मेल झोल था, हम इनमें सुलह करवा दें, हम इनमें मिलाप करवा दें, इनको बैठा के इनके दिल साफ हो जाएंगे एक दूसरे के दोबारा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जैसे अभी समिया ने बड़ी अच्छी बात की थी कि देखिए कहीं पे ना चाहते हुए भी, जैसे फर्ज करें कि आपके अम्मी आपके लिए वैसे गिफ्ट लेकर आते हैं, और आप अपनी कमी और आप किसी दूसरे को आप चाहे उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, क्या देखो अच्छा है, जैसे हमारे रिश्तेदार नहीं, हम किसी और लोगों को देखें कि उनकी माशाल्लाह से इतने बहन भाई हो, तो उनके घर के इवेंट में माशाल्लाह देखो इनके कितना जबरदस्त है, इनके हमारे यहाँ तो रिश्तेदार इतने नहीं है। तो वही बात है कि उससे भी टोक लग रही है कि आपकी अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो रही, वो चीज़ बिल्कुल दूसरों के ऊपर लग रही है क्योंकि हम उनकी खुशी देख रहे हैं, जबकि हम बहुत रसे बसे हैं, उनसे सर ज़्यादा अच्छे हालात हमारे हैं या हम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अक्सर हम लोग ये जुमले बोलते हैं, मेरे साथ कितनी दफ़ा हुआ है महफिलों में, शादी की तकरीब में तो ख़ानदान वाले होते हैं, तो खाना लेने के लिए खड़े में, और अपना ये नहीं देख रहे कि आपके बच्चे जो हैं वो किस मुकाम पे काम कर रहे हैं कि सालाना मतलब उनकी महीने की सैलरी लाखों रुपए में। मुझसे कह रहे थे, कहते हैं ना एक बेवकत बात जो कि नहीं कहनी चाहिए, क्या बोलेंगे उसे, बेवकत। लेकिन मतलब बड़े नोट छाप रही हो, ये किस किस्म की एजुकेटेड फैमिलीज की बात है। तुम्हारे बच्चे तो बड़े कह रहे हैं, तो ये मुहासबा करें कि आपके अपने बच्चे भी तो कहाँ हैं। हम अगर सोशल मीडिया पे आते हैं, टीवी पर आते हैं, हमारा काम ऐसा है, तो आप ही किसी को कैसे बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगी सादी आप तो बड़े नोट छाप रही हैं, ये बहुत कहते हैं ना नाजेबा सी बात है, ये बड़ी पर्सनल बात है, हमें ये नहीं कहना चाहिए। ये आपकी जॉब, ये हमारी जॉब, ये जॉब है। तुम बात नहीं आती, तुम अपने क्यों पिक्चर्स डालती हो इंस्टाग्राम पे? मैंने कहा भाई क्योंकि मेरा काम है, मैंने रोज डिजाइनर के जोड़े पहने हैं, मैंने डिजाइनर को प्रमोट भी करना है, तो मैंने रोज की अपनी पिक्चर डालनी है। मैं अपनी तो
ईद पे देखेंगे कि मैं फैमिली पिक्चर डाल दूं, अदरवाइज में, लेकिन लोग उस पे भी हाँ भाई तुम बात नहीं, तुम क्या पिक्चर डाल, अरे भाई मेरा अरे काम लोग है ये बोलते हैं मदिया, अच्छा जो आप तो हर बोलते एक हैं हम अपनी पिक्चर जरूर लगाते हाँ हो। वो तो लगाते हैं। आप ये पता है, देखते तुम भी तो होंगे। कपड़े रिपीट नहीं करती हो, ये बोलते हैं तुम तो कपड़े रिपीट नहीं करती हो, तुमको क्या जरूरत है, तुम तो कपड़े अरे भाई डिजाइनर के कपड़े होते हैं, किराए के कपड़े होते हैं, उतार शो खत्म होने के बाद उन्हें वापस करने होते हैं, लेकिन वो तुम तो रोजाना, मतलब आप ये सोच देखें, और ये पढ़े लिखे पैसे वाले एक अच्छी फैमिली के लोगों की सोच है। मैं आपको बता रही हूँ कि शादी में तो आपका अपना खानदान होता है, तो उस पे आप खाना लेते वक्त मुझसे बड़े नोट छाप रही हो, और आपकी मेरी ऐसी कोई गुफ्तगू भी नहीं है कि आप मुझसे इतने बड़े मजाक करें। अच्छा समिया, आप तो ये ओनली चाइल्ड हैं, लेकिन आप माशा से आप लोग के भी घर में बड़े, तो ये मुझे बताएं कि वाकई नजर लगती है, जैसे हम अक्सर बहन भाई में देखें बहुत ज़्यादा इत्तेफाक हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, विदिन एक टाइम के बाद कभी कभी अपनी नजर भी है, फिर आप उसको मतलब क्या तोड़ निकालती हैं आप उसका कि नजर ना लगे? देखिए नज़र ना लगे तो लग तो गई, नज़र तो लग गई, नज़र ने चीज़ें भी ख़राब कर दी। हमारी फैमिली में भी ऐसा हुआ एक वाक़या, तो लेकिन अब उसको तो हमने भुगत लिया। अब कोशिश ये होती है कि उस पर बार बार बात ना करें। देखें एक चीज़ अगर ख़राब हो जाए ना और आप उसको खींचते रहें च्युइंगम की तरह, वो ख़राब हो जाएगी। हमने कोशिश भी करके देखी, लेकिन वो बात नहीं संभली। हमने कहा ओके फाइन, और हम आज तक ये हैरान है कि रीज़न क्या है, रीज़न नहीं हमें समझ आया, लेकिन उसका फिर हमने कहा अल्लाह के हवाले किया। हमने कहा ठीक है मालिक तू जानता है, तू बेहतर समझता है। हाँ, क्योंकि मुझे ना एक चीज़ और भी लगती है, कुछ चीज़ें जब अगर आपका इस पे यकीन है ना कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो कुछ चीज़ें वो आपसे इसलिए भी दूर करता है, वो आपके हक में बेहतर नहीं होती। तो इसको ना इस तरह भी उसकी रजा में शामिल हो, क्योंकि हमारा मसला है कि हम शुक्राना नहीं अदा करते। हम फौरन आ जाते हैं कि मेरे साथ क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ शुक्राने का भी हमारा बड़ा अमल दखल होता है कि हमें ना अगर नहीं हुआ कोई काम तो उसमें जरूर कहना चाहिए कि इसमें भी तेरी बेहतरी होगी अल्लाह की। बेहतरी है। अगर फर्ज करें बहन भाई भी आज आपस में नहीं मिल पा रहे ना, और कल तक एक थे, तो हो सकता है आगे चल के वो रिश्ता आपके हक में ना बेहतर हो। अल्लाह ने उसकी सेपरेशन खुद बनाई हो। कैसे हो सकता है कि अगर जो रिश्ता हम कहते हैं कि उसने लिख दिया और होना है, क्योंकि आपको नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले ना मिलेगा ना, हाँ, तो ये अगर कुछ चीज़ आपसे दूर गई, अब यकीन मुझे भी बड़ा टाइम लगा ये चीज़ें समझने में। मेरी ज़िंदगी के ये 6 साल है जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी को समेट के रब के करीब होने पे मुझे पता चला कि अच्छा अगर मेरी ये बात, क्योंकि दुआएं तो मेरी जमा हो रही हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपने कोई दुआ मांगी और रब ने उसको रद्द कर दिया। एक माँ अपने बच्चे की इसके सवाल को रद्द नहीं करती, वो तो 70 माँ उससे ज्यादा प्यार करता है। तो वो जमा हो रही है, बस कबूल कब होंगी वो उसका काम है। आपका काम है आप अपनी दुआ मांगते हैं, आपका भी काम है आप दुआ करें। साले मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने पढ़ा है कहीं कि बहन भाई दुनिया में मिलने क्योंकि जन्नत में वो एक साथ नहीं होंगे। तो आप सबके थ्रू, आप इस शो के थ्रू आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला मेरे बहन भाई हम सब एक हो जाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बस हमारी तो यही कोशिश है, लेकिन बहुत खतरनाक नजर लगी है। आप यकीन करें कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नजर उतारती भी हैं बहुत भी नजर। अच्छा आप चारों अपनी सही तस्वीरें रख के उतार दिया करें। मैंने बहुत किया है, मेरे जो मुझे मौलवी साहब ने बताया है, बीबियों ने बताया, मैं वैसे ही करती हूँ कि काश हम पहले जैसे हो जाए। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है, आपके यहाँ कोई ऐसा बड़ा नहीं जो आप लोगों के बीच में बैठ के सलाह कराने की कोशिश करे? वो बड़ा एक्चुअली जो मेरे भाई हैं वो बड़े हैं और मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मेरी एक बहन मुझसे छोटी है, फिर एक भाई है, तो हम 2 बहन भाई हैं। जो हम दोनों कोशिश मैं कर रही हूँ कि भाई आ जाएं, लेकिन भाभी कुछ ऐसी बात कर देती है कि भाई वापस यहाँ पे तो यहाँ तो फिर वो के बाद और करेंगे आपने डाला। लेकिन आप जाके भाभी को गले लगा लीजिए कि अब वाकई ये होता है कि एक टाइम के बाद शादी के बाद ना अगर आपको अपने भाई के साथ अच्छी रखनी होती है ना, तो आपको होता है कि आप भाभी से भी ना भी रखनी हो तो अपने आप को सरेंडर करना सीखें। हमारा मसला क्या है, हम नहीं करते अपने हाँ, आप ना हम अपने भाई से तवक्को रखें। घर बनता है एक औरत से। मैं अपने हमेशा एक मिसाल देती हूँ, अपने ससुराल में भी ये बात बोलती हूँ कि आप लोग हमेशा कहते हैं हाँ कि अदनान का घर है, कामरान का घर है, जिशान का घर है। अरे नहीं, आप लोग जुमले बदल दें, अफशीन का घर है, ऐनी का घर है, सादिया का घर है, आप देखें मोहब्बतें अलग हो जाएंगी।